Anyways, let's again start. The first point that we were discussing was that the compensation cess has been extended. I don't think today anyone's in a mood to allow me to take a lecture. Anyways, levy and collection of the compensation cess has been extended up to 31st March 26. So originally पहले 5 साल के लिए ही था ये to compensate the revenue which probably might be forgone by the state because of implementation of GST. तो स्टेट को कॉम्पेंसेट करने के लिए तेरी वजह से हो रहा था ये टू कॉम्पेंसेट द Rohit, to compensate the state, there was something called a compensation cess, which was levied initially in 2017 for first 5 years, but that again has been extended up to 31st March. Second is, we are talking about perquisites. So any perquisites which are being paid by an employer to employee as a part of employment agreement is definitely not a part of my definition of supply. याद है ना वो first line item of schedule 3. So based on that, it is not a part of definition of supply and therefore it is not subject to GST, not liable to GST. इसमें बहुत सारी लंबी लंबी स्टोरी लिखी हुई होती है, लेकिन हमारे काम का जो होता है मैंने उतना ही सिर्फ एक्सट्रैक्ट रखा है, वरना 100 पेज पढ़ने से तो बेटर ये कि इतने में समझ में आ जाए. और नीचे है उसका रिस्पेक्टिव सर्कुलर नंबर बाय विच दे हैव मेंशन्ड दिस. Then clarification regarding GST applicability on liquidated damages compensation penalty arising out of the breach of the contract or other provisions of the law. See, please understand what is the meaning of liquidated damages. Liquidated damages का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी किसी एक्ट की वजह से किसी को कोई नुकसान हुआ, डैमेजेस हुए, उसको कॉम्पेंसेट करके देना. मेरी किसी एक्ट की वजह से किसी को कोई लॉस हो रहा है, डैमेजेस हो रहे हैं फाइनेंशियल, तो उसको कॉम्पेंसेट करके देना, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस. तो लिक्विडेटेड डैमेजेस पे क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? व्हाई? बिकॉज व्हेन वी आर लुकिंग एट द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, इवन अ टॉलरेंस is something which is included within the definition of supply. Tolerance of an act was also included within the definition of supply. So let's say for an example, अगर if I'm constructing an house, तो जो बाजू वाले का घर है वो ये हाउस कंस्ट्रक्ट करने के चक्कर में उसके हाउस को भी डैमेज हुआ, तो आई नीड टू देन कॉम्पेंसेट हिम. आर यू गेटिंग? नाउ वॉट एवर आई एम कॉम्पेंसेटिंग हिम, whether it is subject to GST or not. तो लिक्विडेटेड डैमेजेस में जब भी तुम
सोच रहे हो कि इज इट सब्जेक्ट टू जीएसटी और नॉट, तो एक क्वेश्चन का आंसर हर बार सोचना। उन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिखी थी, लॉ हैज डिस्कस मेनी थिंग, तो ये चार्ट में ना मैंने उसका सिर्फ आंसर आपको अंडरस्टैंडेबल वे में, द वे वी अंडरस्टूड इट नो, सिर्फ समराइज करके रखा है कि जब भी कोई फिक्स रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस वुड बी ऑलवेज इधर सब्जेक्ट टू जीएसटी और नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। तो देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या ये लिक्विडेटेड डैमेजेस आर क्वालिफाइंग itself to be treated as a consideration। क्या हम ये बोल सकते हैं कि बाजू वाले ने बोला था कोई दिक्कत नहीं, घर तोड़ दो मेरा, क्या था ये सिचुएशन? टॉलरेंस मतलब there must be an agreement relating to it, no, that we are allowing you to break my house. Was that a case? If answer to that is no, then it does not amount to consideration। वरना तो सारे मेडिक्लेम भी वही कैटेगरी में आते हैं, डैमेजेस को कंपेंसेट ही कर रहे हैं ना वो लोग। So therefore, whenever any liquidated damages are being paid, whenever liquidated damages are being paid, the question that we need to answer is whether that liquidated damages can be classified into the category of, और नहीं दिख रहा हूं मैं, हाँ बट करते, can be, actually ये वाला करना था, ये करता हूं, दिख रहा है, चलो रखो ये। Can it be classified into the category of, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, consideration or not? If it can be classified into the category of consideration, then it is subject to GST, otherwise it is not subject to GST। तो उसी के कुछ examples हमने यहाँ पे mention किए हैं, examples where GST will be levied, meaning thereby these are the situation where we can say that yes, that liquidated damages can be considered as a consideration। पेन से ज्यादा तो टेबल हिल रहा है आज मेरा। हाँ, ये कौन से केसेस हैं जहां पे liquidated damages will be considered as consideration, and since it is considered as a consideration, it is subject to GST। Few of them, let's read। A contract may provide that the payment by the recipient of the goods or services shall be made before certain date। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। अगर वो फेल होता है, and failure to make the payment by the due date shall attract the late fee or the penalty। Hello, this is also something which we have seen under section 15। सेक्शन 15 के इंक्लूजन में इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी। तो ये आप लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हैं, then it will be considered as a part of your consideration, and if it is treated as a part of your consideration, then it is subject to GST, otherwise it is not subject to GST। I'm not reading all the examples, I'm just reading one example, all other examples are given, and please bear in mind whatever examples which are given, no, that probably would be the question of your exam। तो मेरा काम था समझाना, फिर ये एग्जांपल्स आपको खुद पढ़ने होंगे। द पॉइंट हाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। लिक्विडेटेड डैमेजेस, और एक और इंपॉर्टेंट चीज लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए, क्या लिक्विडेटेड डैमेजेस नाम का कोई अलग पदार्थ नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोला? क्योंकि लिक्विडेटेड डैमेजेस का कोई अलग क्लासिफिकेशन करके कोई डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स नहीं है। Then we need to bring section 8, whatever rate which is applicable on principal supply, the same rate would be again applicable to this also liquidated damages। So if my principal supply is falling under 5% category, then 5%। If it is falling under 12%, then 12, 18 to 18, 28 to 28, exempt तो ये भी exempt। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हमें ये सोचना है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जब आप पढ़ रहे हैं तो will it be considered as a consideration or not? That is what we need to first understand, then only we can give an answer that whether GST will be levied or not। तो अच्छा, GST कहाँ नहीं लेवी होंगी उसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। damages resulting from damage to the property because of negligence, piracy, unauthorized use of the trade name, copyright। इसकी वजह से अगर liquidated damages कोई क्लेम कर रहा है, अगर ये मटेरियल मैंने किसी और का कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल होता, किसी और जिसने कॉपीराइट लिया हुआ है वहीं से मैं कॉपी पेस्ट करके चिपका था,
अच्छा, सोर्स मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, सोर्स अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ फॉर एजुकेशन पर्पस आई कैन डू दैट, नो वन कैन स्टॉप मी फॉर डूइंग दैट, लेकिन उस पर मेरा नाम चिपका के अगर मैं बेच रहा हूँ या फिर दे रहा हूँ सबको, सर्कुलेट कर रहा हूँ, देन इट इज अ क्राइम। एक्ट किसी के पप्पा की प्रॉपर्टी नहीं है, मैं जो तुम्हें देता हूँ वो क्या होता है, एक्ट। हाँ, एक्ट किसी का प्रॉपर्टी नहीं है, एक्ट में लिख के दे सकता हूँ दैट दिस इज व्हाट आई हैव पब्लिश्ड। और इसलिए आप देखोगे ना, तो मैंने हिंदी में जो लिखा उसका मतलब भी क्या होता है, इंग्लिश कर लेना, prepared and compiled. It is not where I'm claiming, मतलब sorry, compile and design is not something which is coming out of my own. हाँ, ये एक्चुअली है आपको ऐसा ही, लेकिन टू अवॉइड इट, तो अगर ऐसा किसी का कंटेंट है कॉपीराइट वाला और उसने केस किया कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी बुक नहीं बिक रही है, तुम्हारा सस्ते में तुम बेच रहे हो, जेरोक्स में निकाल के नहीं दे सकता किसी और ऑथर का बुक, विकी सिंघानिया का जेरोक्स निकाल के मैं तुम्हें दे दूं, ईएन के प्रोफेशनल स्टडीज, तो वो केस कर सकता है। तो उसके सामने जो मुझे लिक्विडेटेड डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, क्या ये कंसिडरेशन है दैट बाय पेइंग दिस नाउ आई एम अलाउड टू डू द जेरोक्स एंड देन सेल इट? नो, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन, एंड सिंस इट इज नॉट अ कंसिडरेशन, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। अंडरस्टूड है ना? हाँ, तो जब भी लिक्विडेटेड डैमेजेस का पेमेंट होता है तो दिस इज वेयर यू नीड टू सेग्रीगेट। क्लियर? श्योर? तो जितने एक्ट के अमेंडमेंट हैं दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ इन आवर मटेरियल, these are the additional circulars which are being issued, which are important one, which probably may not be the part of our material. So from that point of, जहां circular आता है which is not a part of our material, that we need to keep in mind, because वो particular 6 महीने में कौन से circular important है वो 6 महीने के बाद ही हमें पता चलता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने हैं। आते तो ऑलमोस्ट हर रोज हैं ये, लेकिन उसमें हमारे लिए एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है उसी पे ध्यान देते हैं, तो वो अमेंडमेंट वाले जितने हैं उतने हम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर 6 मंथ, तो ये हमारे लिए फ्रॉम दैट एंगल इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये पहला हो गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मत भूलना, सिंस दिस सप्लाईज आर एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सप्लाई फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, they shall be eligible to be assessed as a principal supply. Naturally, such payment will not be taxable if the principal supply is also exempt. So basically, they are trying to say that Section 8 will be applicable, and the rate which is applicable to the principal supply, the same rate now again would be applicable to this also. Understood है? ठीक है। अच्छा, ये सारे अलग अलग जो मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये सारे अलग अलग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, जहां पे एक ही सर्कुलर में इन सबका आंसर दिया है कि भाई इस पे जीएसटी लगेगा या इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा आता है चेक अगर डिसऑनर्ड हुआ उसकी वजह से जो पेनल्टी लगी। तो पहले ये सोचो, एक सिंपल सा क्वेश्चन, कि अगर आपने मुझे फीस के लिए चेक दिया, अगर वो बाउंस होता है, मैं बोलूंगा 200 रुपए में लूंगा, तो उसका मतलब ये कि 200 रुपए दो, चेक बाउंस कराओ। तो 200 क्या कंसिडरेशन है चेक बाउंस कराने का? नो। सो वॉट एवर चार्जेस विच आर बीइंग लेविड because of dishonor of check in the name of penalty does not qualify to be treated as a consideration, and that is the reason it is not taxable. तो ये ट्रांजैक्शन ऐसे, इससे ट्रांजैक्शन वो बना के हमें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, हाँ, हाईली प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल। तो ध्यान देना इस पे, मेरे को तो लग रहा है इसमें से 3-4 ट्रांजैक्शन आएंगे, हाँ। तो इसको बहुत, ये 15 पेज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दिन, द डे बिफोर एग्जाम एटलीस्ट 2 बार आपको देखना है, रट्टा नहीं मारना है, आईडीटी में कोई रट्टा मार ही नहीं सकता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लेना कि भाई अच्छा ये सिचुएशन आया तो दिस इज हाउ आई नीड टू डील विद इट। अंडरस्टूड है? आगे, पेनल्टी इंपोज फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ, इज इट टैक्सेबल? नो। रेड लाइट पे खड़ा करना था, नहीं खड़ा किया, तो जो हमें फाइन लगेगा उसका मतलब ये है कि 200 रुपए दो और जब चाहो तब वहां, जहां से चाहो वहां से निकलो। इज इट द केस? अनदर, based on GPCB requirement, you have to maintain whatever is an outcome, which is a kind of a scrap, हाँ, वो पॉल्यूशन ज्यादा नहीं करे, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो मैच करने होते हैं। अगर आपने वो नहीं किया तो GPCB will levy penalty on you. All these are the penalty which are imposed because of violation of law. It does not permit you कि आप पेनल्टी दे दो फिर जितना केमिकल नदी में डालना है डाल दो। Is it the case? Answer is no.
इट डज नॉट अमाउंट टू अगेन अ कंसिडरेशन। तो थीम वही है, लेकिन अलग अलग उन्होंने एग्जांपल दिए हैं दैट एनी पेनल्टी विच इज इम्पोज्ड बाय लॉ डज नॉट क्वालिफाई टू बी ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन। तो लेट फी, अगर हम रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं तो लेट फी जो भर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं होता है कि लेट फी भरने से हमें अलाउ कर दिया कि हाँ लेट फी भरो, तो दैट इज एडिशनल कंसिडरेशन। Am I clear on this? Sure. So therefore this is also not treated as subject to GST. ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरा खुद का व्यू पहले थोड़ा इस पे अलग था, बट बिकॉज द सर्कुलर इज क्लैरिफाइंग, नाउ वी आर नॉट आस्किंग आवर क्लाइंट टू पे जीएसटी ऑन इट, दैट इज अ forfeiture of salary or payment of bond amount in event of employee leaving the employment before minimum agreed period. तो जो एम्प्लॉय का नोटिस पीरियड होता है ना कि आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ना चाहते हो तो आपको मिनिमम 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो 1 महीने के लिए है, तो आपको एक कंपनी जल्दी छोड़ के जाना है, तो आप अगर जल्दी छोड़ के जाते हो तो देन यू नीड टू पे सर्टेन अमाउंट टू द एम्प्लॉयर एज अ पार्ट ऑफ डैमेजेस, क्योंकि हैंड ओवर के लिए कोई रहेगा नहीं, फिर आप जो काम कर रहे थे उसके हैंड ओवर के लिए शायद कोई नहीं रहेगा और कंपनी के पास टाइम नहीं रहेगा किसी और को फटाफट हायर करके काम चालू करवा देना। तो बहुत बार अगर आप ये नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हो तो बहुत सारी कंपनी आपसे पैसे वसूलती है, या फिर मिनिमम आप बोलोगे ज्वाइन करने के टाइम पे दैट मिनिमम मैं 2 साल आपकी कंपनी में काम करूंगा और उसके पहले आप छोड़ के जा रहे हो, देन आल्सो दे वुड बी चार्जिंग सर्टेन मनी। सो द क्वेश्चन arises that whether it is subject to GST or not. I was of the opinion earlier that it is subject to GST, but now since they have clarified it is not subject to GST. Why? Again, because it is not something which we can say that amount to consideration, because there is something in written में कुछ है नहीं, कंपनी को भी कुछ रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा है, so there is a penalty which basically they are leaving, which is again coming out of your employment agreement. It's not subject to GST. So conclusion is it is not subject to GST, therefore not taxable. क्या? नोटिस पे, हाँ अलग नाम भी हो सकता है उसका, उसको बोलते हैं नोटिस पे। क्लियर है? आगे लेट पेमेंट सरचार्ज फीस, लेट पेमेंट फी तो वापस से ये सेक्शन 15 ही है, सेक्शन 15 के इंक्लूजन में था ना लेट पेमेंट, बिकॉज आप किसी भी नाम पे कलेक्ट करो उसको, फी के नाम पे, इंटरेस्ट के नाम पे, पेनल्टी के नाम पे, बट दिस इज समथिंग दैट यू आर कलेक्टिंग एक्स्ट्रा ओवर एंड अबाउट द इनवॉइस प्राइस ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर डिलेड पेमेंट, नाम चाहे उसका कुछ भी हो, दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी इफ द प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो इसका खुद का वापस से कोई स्टैंड नहीं होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का है तो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, तो उसका लेट फी या फिर पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट इज आल्सो नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। एम आई क्लियर ऑन दिस? श्योर। अगर आपने कोई टैक्स लेट पे किया है उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो टैक्स इज सब्जेक्ट टू जीएसटी? आंसर इज नो। हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट आपने किसी से परचेस किया था और वो परचेस करने के बाद आपको 30 डेज के अंदर पेमेंट करना था, आपने 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, उसकी वजह से आपके सप्लायर ने इंटरेस्ट लगाया फॉर डिलेड पेमेंट, is it subject to GST? Then answer is yes. Why? Because those goods were subject to GST. If those goods were also not subject to GST, then interest is also not subject to GST. अगर वो गुड्स होते आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो अगेन दिस आल्सो नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। व्हाई? बिकॉज दिस इंटरेस्ट इज फॉर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सम गुड्स which are not part of GST. अंडरस्टूड है? तो अगर वो एग्जाम तो ये भी एग्जाम, अगर वो टैक्सेबल तो ये भी टैक्सेबल। नेक्स्ट, फिक्स चार्ज ऑफ पावर। व्हाट बेसिकली दे आर ट्राइंग टू कवर हियर इज कि आप जब भी लाइट बिल खोल के देखते हो ना तो उसमें एक फिक्स चार्ज होते हैं और दूसरे नंबर ऑफ यूनिट्स जितने हमने यूज किए उसके सामने कुछ वो पैसा लेते हैं। तो द क्वेश्चन अराइजेस, कंफ्यूजन वाज देयर इन द माइंड ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बेच रहे हैं तो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, लेकिन ये जो फिक्स चार्जेस हम ले रहे हैं तो क्या इसे भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ही माने हम? क्योंकि अगर इसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने माना देन इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, लेकिन अगर हमने माना कि नहीं ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं है देन इट अमाउंट टू जीएसटी, सब्जेक्ट टू जीएसटी। Then the clarification came that what fixed charges this MGVCL, PGVCL, UGVCL, basically this electricity companies are charging
fixed charges are also to be treated as electricity charges, and since it is treated as electricity charges, that is not subject to GST. Understood? Last, cancellation charges, again very much similar to liquidated damages. You need to see that whether that cancellation charges are amounting to consideration or not. If that is the case, then it is subject to GST. एक एग्जांपल दे दूं, आपने कोई शादी के लिए हॉल बुक कराया, एडवांस दिया, फिर कैंसिल कराया, तो उसने 10, 12, 15, 20 हजार काट लिए. Why? Because of opportunity loss, subject to GST. बुकिंग करवाने का पैसा था वो, which is non refundable, subject to GST. तो जितने प्रिंसिपल हम लिक्विडेटेड डैमेजेस में अप्लाई करते हैं, उतने ही प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होंगे. आपने बस का टिकट बुक कराया, फिर लास्ट मोमेंट पे 2 घंटे पहले आप कैंसिल कर रहे हो, सब्जेक्ट टू जीएसटी. या तो आप गए ही नहीं और रिफंड मांगने जाते हो, तो भाई मैं नहीं गया था, सब्जेक्ट टू जीएसटी. Why? Because it is a consideration, you have paid for it, and to that extent हमने तुमको something return दिया ना, we have reserved that seat for you for that period, and whatever cancellation fees we are charging is for that particular period. That is how there is a something in return will be treated as a consideration, and since it is treated as a consideration, subject to GST. लेकिन अगर कुछ ऐसा हो cancellation charges which is not amounting to consideration, then it is not subject to GST. Understood? 2 मिनट दे रहा हूँ, देख लो, because there is something which is not covered in our material. Ready? Then again, section 10. Section 10 में कल हमने understand किया था, there are new goods which are added. Within that new goods, again further new goods which are added. To which the benefit of section 10 is not available. So again, I'm not going into it. कल जो हमने किया था वो अप्रैल तक था. This is something which came in July 22. कौन सा line item? The first line item, which is marked in bold. Fine. Again, the amendment relating to RCM. तो पैम्पलेट अब खोल के देखना है तो देख लो, जहां जहां एक्ट में अमेंडमेंट है वो सारे अंदर हमने इनकॉर्पोरेट किए हुए ही हैं. तो पहले एक लाइन थी, if you have paid GST at the rate of 6 in case of GTA, if supplier has paid GST at the rate of 6% CGST, 6% SGST, टोटल 12%, तो RCM नहीं लगेगा. ऐसा एक लाइन था पहले, which has been removed. So now GTA will decide whether he want to pay
और ही डोंट वांट टू पे। अगर 12% से कम पे किया है, मतलब 5% पे किया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर भी आरसीएम लगेगा। एनी 1 पर्सन विल पे एट वन टाइम, सिंपल। तो पहले क्या था इसका मिस इंटरप्रिटेशन, कि अगर आप पढ़ो ना तो जीटीए इफ आरसीएम कब लगेगा, जब जीटीए ने पे नहीं किया है टैक्स एट द रेट ऑफ 6% सीजीएसटी प्लस 6% एसजीएसटी 12%। तो पहले इसका इंटरप्रिटेशन ये होता था, लोग ये करते थे कि भाई लॉ ने क्या बोला है कि अगर जीटीए ने 12% पे किया तो आरसीएम नहीं लगेगा, अगर जीटीए ने 12% पे नहीं किया है तो आरसीएम लगेगा। मीनिंग thereby if GTA opt not to avail ITC and decide to pay GST at the rate of 5%, so in that case they have not paid at 12%. That means GTA will pay at 5% as well as the recipient will also pay at the rate of 5%. मैंने खुद पे करवाया है, because law has written clearly कि GTA ने 12% पे किया है तो ही आरसीएम नहीं लगेगा, वो लाइन ही हटा दी। That means now any 1 person will pay. Either GTA first will decide whether he wants to pay. If he is paying, he has two options: 12%, 5% with ITC, without ITC. If he has paid, then the recipient will not pay. If he has not paid, then recipient will pay. GTA again has an option not to even apply for registration. Why? Because he then decides that everything, whatever he is supplying, is covered under RCM. Then he may not apply for even registration also. But in that case, RCM will be applicable. Understood? And that is what has been added in this notification. जो नीचे instruction लिखी हुई है ना, वो वही है जो मैंने आपको बताया, that he has now option pay or not to pay, and that also I think is a part of our अपने material में है, ये है ना? Fine. Then new RCM which was added, renting of residential property to a registered person. Supplier कौन होना चाहिए? Could be any person. The recipient should be a registered person. Then the RCM is applicable. So this is a new RCM which was added. Therefore it becomes an important. इसका भी एक ट्रांजेक्शन आएगा ही आएगा, मान के चलो 40 मार्क्स का आएगा, इसमें से 15 पेज कंटेन्स 30 to 40 मार्क्स वेटेज, सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां जहां पैम्पलेट में भी आता है इसके साथ साथ फिर वो भी रूटीन में तुम पढ़ोगे तो आएगा ही डिटेल में। ये सिर्फ किसके लिए है? जस्ट टू रिकॉल दैट दैट वाज इंपॉर्टेंट। क्लियर? इससे कुछ कॉन्सेप्ट समझना ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे सिर्फ रिवाइज करके याद कर लेना है कि भाई ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो 30-40 मार्क का तो डेफिनेट इसमें से आएगा। ये 15 पेज, एवरी पेज हैज अ वेटेज ऑफ मिनिमम 2 मार्क। हाँ, तो ध्यान से समझना। देन आरसीएम में भी देयर वाज अमेंडमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में वो स्पीड पोस्ट वाला लाइन को स्ट्राइक आउट किया था। क्यों? क्योंकि वैसे भी उस पर फॉरवर्ड चाहता, कोई रखने का लॉजिक नहीं बनता था। तो ऐसा नहीं है इससे कुछ नया इंप्लीकेशन होता है। पहले भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द नेम ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, कार्गो, इंश्योरेंस सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज इफ प्रोवाइडेड टू द पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। तो पहले भी ये टैक्सेबल था अंडर फॉरवर्ड चार्ज, आज भी ये टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज में है। आरसी में ये लाइन रखने का कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि मतलब नहीं बनता था, इसलिए उन्होंने सिर्फ हटा दिया। अंडरस्टूड है? इससे कोई नया इंप्लीकेशन नहीं आता कि कुछ काम का नहीं था, तो इससे कुछ क्वेश्चन बन नहीं सकता है। बन सकता है तो मैक्सिमम क्या बन सकता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, कार्गो, इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस। और आपको बताएंगे कि इस पे जीएसटी कौन पे करेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमको बताना है फॉरवर्ड चार्ज में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की पे करेगा एट एप्लीकेबल रेट 18%। क्लियर है? बाकी नया इससे कुछ इंप्लीकेशन नहीं आता है। एंड accordingly the exemptions entries have also been amended, which we are going to come. Now we are going under an exemption. There is a new entry 24C. Entry number 24C was inserted, which dedicatedly provide an exemption to the services provided by Department of Post. कौन सी? आपको इसमें वही दिखेगी, अदर देन स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, इंश्योरेंस एंड एजेंसी। उसके अलावा वाली सर्विस कौन सी? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, उसमें भी वेट शुड बी लेस देन ओनली इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जम्पशन, then only it is a part of exemption. Understood? तो बाकी का तो टैक्सेबल ही है। अब क्योंकि सिर्फ इसको टैक्सेबल में से हटा दिया,
तो बहुत सारी लाइन आइटम थी गवर्नमेंट सप्लाई जब करती है सर्विस, जहां ये स्पीड पोस्ट बहुत दिखता था, उन सब जगह से कितनी एंट्री थी, ये सारी एंट्री में, इन सारी एंट्री से फिर वो स्ट्राइक आउट हुआ है। आगे आएगा, जस्ट अभी से मैं बता दूं व्हाई, बिकॉज देयर इज अ डेडिकेटेड एग्जम्पशन गिवन टू normal services provided by the Department of Post. All this got eliminated, and because all this eliminated, तो जहां जहां अब फिर अननेसेसरी था, क्योंकि लंबा लंबा बहुत हो रहा था, तो सब जगह से फिर वो काट दिए। क्लियर? सो दिस इज अ न्यू एंट्री रिलेटिंग टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अब क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में चेंजेस हैं, तो अगेन क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड ऑन इट। भले वो 2 मार्क का एमसीक्यू, लेकिन वो फ्रेम हो सकता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आएगा 10 मार्क का। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव में भी 20 में से 10 मार्क का यहाँ से आ रहा है और बाकी का 20 मार्क कहीं और आ रहा है, तो मेरे 10 तो सिक्योर हुए ही, क्योंकि ये 15 पेज में से ही आया। और जहां तक मेरा एस्टिमेट है, तो 30 to 40 तो आएगा ही आएगा इसमें से। हाँ, कल वाला भी जो था, दैट ऑल्सो आई विल सेंड इट टू यू। अगर उसमें से भी उसके चांस कम होते हैं, लास्ट 6 months आर वेरी क्रूशियल। देन नेक्स्ट सर्विस, this is also included in our pamphlet, tour operator services, which is performed partly in India, partly outside India. Tour operator services which are performed partly in India, partly outside India, supplied by a tour operator to foreign tourists, to the extent the value of the tour operator service which is performed outside India. हेलो, तो टूर ऑपरेटर इंडिया का होगा, लेकिन किसको सर्विस दी है उसने? फॉरेन टूरिस्ट को, फॉर द टूर विच इज बीइंग कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया। दैट वाज अगेन इंक्लूडेड इन आवर एग्जम्पशन। यहाँ पे मैंने वापस उसको पूरा डाला हुआ है, उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी थे, इफ यू कैन रिकॉल। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट इलस्ट्रेशन वाइज, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। पर्पस क्या है यहाँ पे? जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट व्हेन the services are provided by a tour operator to the foreign tourist for a tour to be conducted outside India, तो proportionate exemption कैसे दे? क्योंकि इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी है। अगर पूरा इंडिया के बाहर है तो exempt ही है। आप समझ रहे हो क्या आ रहा है यहाँ पे? पार्टली इन इंडिया, पार्टली आउटसाइड इंडिया। तो वो नंबर ऑफ डेज के बेस पे याद है, हमने तब डिस्कस किया था कि कितने दिन कहाँ स्पेंड किए, उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन करता था। तो उसी हिसाब से इलस्ट्रेशन के साथ है। तो ये भी अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, तो ये रिवाइज होना चाहिए। फिर ये वाले जो 15 पेज में, उसमें आपकी क्लरिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। द टारगेट for this audience is never 50 mark, please be very clear. Target is 70 plus. The kind of regularity you people have shown, no, that clearly indicate that you can get 70 plus. Now if we are not getting 70 plus, that means somewhere we were lacking in preparation। जहां डेडिकेशन से पढ़ना था, वहां हमने कुछ गड़बड़ नहीं की है। तो अब ध्यान से समझो, 3 इडियट को बीच में अभी मत लाओ कि गो फॉर द एक्सीलेंस, सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगा। इट्स ओके व्हेन इट कम्स टू डे टू डे लर्निंग, बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन डेडिकेटेड टास्क, it has to be prepared object oriented. So I need to understand exactly what would be the exam pattern, what kind of question they are asking, what kind of MCQ question they are asking. To try to go and see, आपको खुद एनालाइज करो कि मैंने आगे वाले 6 महीने के भी अमेंडमेंट दिए हैं ना, पिछला पेपर अगर मिलता है तो निकाल के देखो, उसमें आपको अमेंडमेंट दिखेंगे कम से कम 30 से 40 मार्क का। ये सिर्फ डीटी के लिए, आईडीटी के लिए नहीं, ये डीटी में भी यही कॉन्सेप्ट है। डीटी में भी अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है ना, तो आपने देखा होगा कि अमेंडमेंट से बहुत पूछते हैं, लेकिन डीटी में उतना इजी नहीं होता अमेंडमेंट से पूछना, क्योंकि एक सैलरी में अमेंडमेंट है तो एक क्वेश्चन फिर उसका नहीं बन सकता है। हाँ, यहाँ पे तो अलग क्वेश्चन ही बन सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत छोटे छोटे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं which are independent from each other. DT don't have that kind of mechanism. Clear? Fine. Another exemption which was introduced, which we did yesterday also, came in October 21, क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद exemption में आ जाए तो मिस नहीं होना चाहिए। National permit to GTA, whatever charges which are being paid for getting a national permit is something which is exempted from GST. Understood?
नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अमेंडमेंट्स व्हिच आर मेड इन एग्जिस्टिंग एग्जम्पशन। ऊपर जो भी हमने पढ़ा वो तो क्या था कि नया कौन सा आया, ये क्या है, व्हाट आर द अमेंडमेंट्स व्हिच हैज बीन ब्रॉट। ठीक है, पहला अमेंडमेंट आया है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू बी यूज एज अ रेसिडेंस, तो वो एग्जम्प्ट था। लेकिन इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और अमेंडमेंट आया जो था आरसीएम में, कि भले रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, भले यूज हो रही हो एज अ रेसिडेंस, लेकिन अगर वो तुमने रेंट पे दिया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम लगेगा। वो आरसीएम में लेके आए, आरसीएम में अगर वो लेके आए और फिर एग्जम्पशन कंटिन्यू रखें तो दिक्कत। तो बोलेगा आरसीएम तो है लेकिन सर्विस इटसेल्फ इज एग्जाम, तो आई विल नॉट पे जीएसटी ऑन इट। सो इट इज सिमिलर टू जीटीए। जीटीए को आरसीएम में रखा लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, विच इज एग्जम्प्टेड। तो इवन दो आई एम लायबल टू पे अंडर आरसीएम, बट व्हेन आई एम गोइंग फॉर पेइंग अंडर आरसीएम, मैंने देखा कि जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जाम, तो बीइंग रेसिपिएंट आई विल नॉट पे। व्हाई? बिकॉज द बेनिफिट इज नॉट सप्लायर ओरिएंटेड, बेनिफिट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो यहाँ एक्टिविटी क्या थी, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू बी यूज एज अ रेसिडेंस, तो पहले एग्जाम था जिसको कि आरसीएम में लेके आए। ऑब्जेक्ट क्लियर था, इसको टैक्सेबल करना है if this services are being provided to a registered person. So to that extent this exemption has been modified by way of understood है, exception डाल के, except in case of this, fine. So this is something which has came on July 22. उसके नीचे वाला है स्कीम जो बोल्ड में है January 23, so not relevant right now. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, हमें सिर्फ यहां तक ही हमारे काम का है ये अटेम्प्ट के लिए, only to this extent. This explanation was inserted from January 23, not relevant for us. Confused मत। Now another exemption relating to transportation of passenger, ये कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। कल वाले में क्या था जो हमने डिस्कस किया था, ये वाला था, बिकॉज वो मेरी वो वाली डेट में फॉलो होता था जहां पे डाला हुआ था 9(5) transportation of passenger for 9(5) which was applicable only to BNC. So this is something which is applicable from January 22. ठीक है, तो ये जुलाई से क्या आया, एयर था पहले। देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अब एयर से जाओ तो वो एयर था, लेकिन उसके पीछे क्या लगा, हाँ आ रही ना बात समझ में। तो कल वाला अगर हम खोल के देखें ना तो वहां इकोनॉमिक क्लास नहीं था, सिर्फ एयर था। मतलब कितना, दिख रहा है, सिर्फ एयर, पीछे इकोनॉमिक क्लास नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे जो आया अमेंडमेंट दैट वाज इन जनवरी 22, यहाँ इकोनॉमिक क्लास नहीं लिखा है, जबकि जो जुलाई से आया वहां पे क्या लिखा हुआ है पीछे, मैंने स्क्वायर वैसे तो किया हुआ ये, तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो दैट दिस इज समथिंग which has came on 18th of July 22. क्या स्पेसिफिकली दिस इकोनॉमिकल क्लास। तो इसके बाद मतलब जुलाई 22 के बाद
अगर तुमने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया फॉर नॉर्थ ईस्ट, टैक्सेबल। व्हाट इज एग्जम्प्टेड? ओनली इकोनॉमिक क्लास। क्लियर है? उससे पहले तो सब एग्जम्प्ट ही था, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, 18 जुलाई के बाद। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर रेल एंड वेसल। अच्छा, हमारे जो मटेरियल है उसमें से ये लाइन आइटम आपको दिखेगी नहीं, डी दिखेगा ही नहीं। तो आप सीरियल नंबर 20 खोल के देखोगे ना, तो तुम्हें ये नहीं दिखेगा। अब मुझे लगा कि उसकी वजह से एक डिसएडवांटेज ये होता है कि तुम्हें पता ही नहीं था कि वहां पे था क्या, तो इसलिए मैंने पूरी सारी लाइन आइटम लिखी कि देखो ये निकला है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल और वेसल, कौन से इक्विपमेंट? दिस इज अ गुड स्पेसिफिक एग्जम्पशन ना, railway equipment and material which earlier was exempted, that exemption has been eliminated from July 22। बाकी सारा पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सिर्फ एक डी वाली लाइन आइटम got striked out। Understood? Transportation of goods, GTA, this also was not there in our material by way of eliminating। I don't recall whether it was strike through or लिखा ही नहीं था मैंने, लेकिन पहले एक एग्जम्पशन था अलग से 1500 और 750 वाला, जो सबको मिलता था। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो अगर आपने उसको दिए 750 रुपए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उससे कम है अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 750 से कम है अगर, देन इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। अगर आपने टेम्पो पूरा रेंट पे लिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जिस टेम्पो में सिर्फ आपका ही सामान है, तो 1500, किसी और के साथ है तो 750, ऐसा था कॉम्प्लेक्स। That exemption has been now withdrawn, so now everything is taxable, no monetary exemption, no monetary exemption। तो आपको कहीं पे भी जीटीए में दिखे 1500 या 750 से कम वाली वैल्यू, तो एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है। इफ इट क्वालिफाई टू बिकम टैक्सेबल, बाकी सारे एग्जामेशन में अगर फॉल नहीं हो रहा है, तो वो सिर्फ अमाउंट की वजह से एग्जामेशन अब नहीं रहा। सो दिस टू लाइन आइटम्स वेर एलिमिनेटेड, जहां पे 750 एंड 1500 मॉनेटरी लिमिट के साथ एग्जामेशन दिया गया। बाकी सारे तो पहले भी थे, अभी भी हैं। ठीक है? दिस इज सर्विस रिलेटिंग टू स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स, जिसमें से कुछ निकल गए हैं। तो अगेन आई वाज नॉट वेरी श्योर कि मैंने जो दिया है, एक लाइन आइटम को मैं चेक करके याद करके करता, उससे बेटर मैंने पूरा ही डाल दिया। जो जो निकल गए हैं उस पर ध्यान दो। नट्स का स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग इज टैक्सेबल नाउ, कब से? जुलाई 22 के बाद। तो nuts cannot be considered as a agriculture produce, that is what I'm trying to understand, neither as a vegetable nor as a particular product which could be exempted। तो अब देखो आप, तो broadly cereals, pulses, fruits, vegetables, सिर्फ उस पे ही exemption रहा। उसके अलावा nuts, spices, copra, sugarcane, jaggery, raw vegetable fibers such as cotton, flax, jute, indigo, unmanufactured tobacco, bitter leaves, tendu leaves, coffee, tea, इन सारे पे जो एग्जामिशन था पहले, वो एग्जामिशन चला गया है। तो क्वेश्चन में अगर हमें कुछ आएगा तो ये स्ट्राइक आउट किए हुए चीजों में से आएगा, जहां पे मुझे याद रखना है कि इसका स्टोरेज, वेयरहाउसिंग इज नॉट exempted, taxable। एग्जामिशन में अभी चार ही चीजें रही, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दैट्स इट। इनका ही सिर्फ स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग आर exempt, ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टैक्सेबल। अंडरस्टूड है? बहुत सारी स्टोरी थी, इसको मैंने कंपाइल इसीलिए किया कि हमको काम की चीजें ही देखना है सिर्फ। ठीक है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपाइल 99 पेजेस इनटू लेस नंबर ऑफ पेजेस। देन अगेन एग्रीकल्चर सर्विसेज में भी पूरा लिस्ट था, मैंने आपको जहां पे बताया था सीरियल नंबर 54, जहां पे प्राइमरी मार्केट, आपके फार्म से लेके प्राइमरी मार्केट तक की जितनी भी एग्रीकल्चर सर्विसेज हैं, वो सारी एग्जम्प्ट होती हैं। उसमें लास्ट लाइन आइटम एक थी जो शायद हमारे पैम्पलेट में ना हो, क्योंकि इट इज नो मोर एग्जम्प्ट। वो लास्ट आइटम थी क्या? बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फ्यूमिगेशन मतलब कीड़े ना लगे उसकी वजह से जो धुआं करते हैं ना, मच्छर वच्छर जैसे, कैसे करते हैं ऐसा, तो वैसा ही फ्यूमिगेशन चार्जेस अर्लियर वे exempted, now becomes taxable
फ्यूमिगेशन इन द वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ये आ जाता है तुम्हारे प्राइमरी मार्केट तक के लिम में, फार्म से लेके प्राइमरी मार्केट में भी वेयरहाउस आ जाता है। तो अगर आपका खुद का फार्म पे, अगर आपका खुद का वेयरहाउस है जहां पे तुम फ्यूमिगेशन करा रहे हो, हाँ, तो दैट वुड बी टैक्सेबल, नॉट एग्जम, इवन दो इट इज विद इन द चैनल ऑफ फार्म टू प्राइमरी मार्केट। क्योंकि उस टाइम पे हमने ये अंडरस्टूड किया था फार्म से लेके प्राइमरी मार्केट तक सारी सर्विसेज आर एग्जम, बट एक्सेप्ट दिस फ्यूमिगेशन इज टैक्सेबल। अंडरस्टूड है? फिर हेल्थ के रिलेटेड सर्विस एग्जम्पशन में भी एक नई चीज आई थी जो हमने आई थिंक इंसर्ट की हुई है स्पेसिफिकली। क्या? हेल्थ केयर सर्विस आर प्राइमरीली एग्जम्प्टेड, लेकिन नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शेल apply to the services provided by clinical establishment by way of providing room, but other than ICU, CCU, ICCU, neonatal मतलब NICU, having room charges exceeding 5,000 per day। तो अगर आईसीयू क्रिटिकल केयर के लिए अगर आपको चाहिए तो कोई भी अमाउंट हो एग्जम्प्ट रहेगी, लेकिन उसके अलावा अभी भी हॉस्पिटल में भी सूट्स आते हैं। अगर आपको रूम चाहिए तो उसमें भी आप सूट्स बुक करा सकते हो। अब हाल में जाओ, तुम्हें लगेगा नहीं अंदर के तुम हॉस्पिटल में हो, यू विल फील लाइक दैट यू आर इन सम रिसोर्ट। उस हिसाब से रूम होते हैं अपने। मेरी ऑफिस से बड़े रूम, एक रूम, मैं रुका हूँ 15 दिन, मेरे को पता है, मेरे लिए नहीं रुका था। स्विच भी चालू कर दे, चार्जिंग वाली। अगर तुम 15 दिन वहां रुको, तुम्हारा घर पे मन नहीं लगेगा फिर। ऐसे रूम बनाए इन लोगों ने। हाँ, तो अगर वो आईसीयू के अलावा कोई रूम है जिसके चार्जेस 5,000 से ज्यादा है, विच इज सब्जेक्ट टू नाउ जीएसटी, सो डॉक्टर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन टू दिस एक्सटेंट। क्लियर है? ये भी आप मार्क करके रखो, क्योंकि सब मान के चलते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ माई हेल्थ केयर, सो एवरीथिंग इज एग्जाम। और वहां तुम्हें कोई बोल्ड करके नहीं देंगे। हाँ, 5,000 लिमिट याद रखनी चाहिए। तो मैं जो रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ ना, इसलिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब बोल्ड में है तो हमें समझ में आता है अच्छा ये हो रहा है। क्वेश्चन पेपर में ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखो। देखो यहाँ पे तो वहाँ एक सिंपल सेंटेंस में तुम्हें जज करना होता है, तो थोड़ा पॉज लेके सॉल्यूशन करना है। आईडीटी का पेपर छूट जाए ऐसा नहीं होता कभी, आए वही बहुत है। तुमने आवड़े ने एक पूछ है, छूटेगा नहीं अगर तुम्हें आता है तो, और तुम्हें नहीं आता है तो नहीं बोलते छूट गया। हाँ, हम बताते हैं ना बहुत बार कि यार 15 मांगो छुट्टी, छुट्टी नहीं देना आवड़ तुझ ना, छूट गया उसे बोलते हैं जहाँ पे तुम्हें आता था लेकिन टाइम नहीं मिला। ऐसा नॉर्मली बहुत कम होता है। जब तक तुम्हें आता होता है तब तक तो पेपर खत्म हो ही जाए कैसे भी करके। तो जो तुम बाहर निकल के या घर पे मामू बनाते हो ना, अरे बहुत टफ एग्जाम होती है, पेपर ही छूट जाता है, तुम्हें आता नहीं था। तुम्हें आता होता तो तुमने ढूंढ लिया होता, आंसर लिख लिया होता कैसे भी करके। फाइन, आगे। ओल्ड एंट्री was eliminated, new entry was inserted. Services by training and coaching in recreational activity relating to art, culture by individual or sport by charitable entity registered under 12AA or AB of income tax, then only it is exempted. पहली की एंट्री क्या थी वो हमें जाननी भी नहीं है, तुम सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। स्पोर्ट का ट्रेनिंग should be by entity registered under 12AA or AB. Recreational activity relating to art or culture could be by an individual also. ठीक है, पहले सब साथ में था, आर्ट कल्चर स्पोर्ट बाय दिस, लेकिन आर्ट कल्चर में ट्रस्ट क्या करेगा, सिर्फ इंडिविजुअल नो। तो अगर मैं गाना सिखा रहा हूं तुम्हें, वो ट्रस्ट नहीं सिखा रहा, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी होता है ना, सो देयरफॉर दे हैव स्प्लिटेड इट। देन these are the exemption which got withdrawn, जो कि हमारे लिस्ट में है ही नहीं। हाँ? तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा ही नहीं क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ के कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने नहीं दिया था, क्योंकि पढ़ते हैं ना तो एग्जाम में कैसा होता है, फोटोजेनिक मेमोरी का काम करता है।
तुमको ही दिखा ना आरबीआई, तो तुमको याद आएगा एग्जम्पशन में मेरे को आरबीआई दिखा था, ये आदमी आएगा एग्जाम था या एग्जम्पशन चला गया था, ऑन दैट एस्पेक्ट नो मैंने जानबूझ के जो दिए ही नहीं थे कि तुम्हें कंफ्यूजन हो ही नहीं। तो ये लिस्ट आपको 2 घंटे पहले जब तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो एग्जाम में जाने से पहले, तब ये लिस्ट पढ़ना है। इससे क्या फायदा होगा कि तुम्हें क्लियर आइडिया है कि दिस इज समथिंग विच इज टैक्सेबल। अगर रेगुलर प्रिपरेशन के साथ तुमने ये पढ़ा ना तो बहुत कंफ्यूजिंग है फिर, क्योंकि तुम्हें वो फोटोजेनिक याद रहता है कि ऐसा कुछ था विच वाज एग्जाम्पशन के अंदर था। अच्छा एग्जाम्पशन के अंदर था तो एग्जाम ही होगा, तभी तो एग्जाम्पशन में था। हम रिवर्स साइड नहीं सोचते ना यहाँ पे। तो दिस लिस्ट you are not reading before or at the time of your normal preparation, you are reading the day of examination is sufficient। उससे पहले ये वाला विड्रॉल वाला लिस्ट तुम नहीं पढ़ोगे। क्लियर है? चलो देखते हैं क्या है। पहले अगर आप होटल में रुकते हो तो 1000 रुपए तक का अगर रेंट है तो इट वाज एग्जाम्पशन, इट वाज पार्ट ऑफ एग्जाम्पशन दैट हैज बीन विड्रॉन, सो व्हाटएवर रूम चार्जेस नाउ यू आर पेइंग सब्जेक्ट टू टैक्स। दूसरा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई earlier was exempted, now taxable। तीसरा services provided by IRDA earlier was exempted, now it is taxable। next services provided by SEBI earlier exempted, now taxable। services of leasing of asset, रेलवे वाला कल देख रहा था हमने, तो वही है ये तो, हाँ अक्टूबर 21 वाला कल देखा था हमने ऑलरेडी, so that is a taxable। services by way of license registration and analysis of टेस्टिंग ऑफ द फूड सैंपल सप्लाइड बाय FSSAI, उससे अगर लाइसेंस लेना है जिसके लिए तुमने चार्जेस पे किए, टैक्सेबल, पहले ये एग्जाम था। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GSTN, टैक्सेबल। सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, टैक्सेबल। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल अर्लियर वाज एग्जम्प्टेड, नाउ टैक्सेबल। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ब्लड बैंक्स, वाह वाह वाह, स्वाहा स्वाहा जैसा हो रहा है ना। So basically this is something biomedical waste का treatment पहले exam था, now it is very good, fine, sure। Now there are circulars which were not part of our material, so now let's understand one by one। Clarification regarding applicability of GST of the food which is being supplied in आंगनवाड़ी or at school। अच्छा क्या होगा, क्या लगता है तुम्हें? बच्चों को खाना खिलाना है, इसके लिए अगर पैसे लिए तो टैक्सेबल होगा क्या? एग्जाम। और वैसे भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्कूल, एनीथिंग व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय स्कूल इज एग्जम्प्टेड, सो देयरफॉर इट इज एग्जम्प्ट। आंगनवाड़ी दिखेगी तुम्हें एग्जाम में तो वो आंगनवाड़ी में थोड़ा खेल के आना, एग्जम्प्ट। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एक्टिविटी, ध्यान से समझो मैंने स्क्वायर क्यों किया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वेयर कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड इन अ डिफर्ड पेमेंट एन्युटी। अच्छा ये एन्युटी और रोड तुम्हें कहां दिखा था? टोल टैक्स में, याद है? टोल टैक्स आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, याद है? टोल टैक्स आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। वाह वाह वाह, क्या रिवीजन किया है तुमने। अगर यहाँ से तुम अहमदाबाद जा रहे हो और टोल टैक्स बीच में पे कर रहे हो तो इज इट सब्जेक्ट टू जीएसटी? टोल इटसेल्फ इज अ टैक्स, तो टोल टैक्स पे वापस टैक्स, तो इट वाज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। बट पास निकाला हो तो दैट वाज आल्सो नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, क्योंकि टोल में दो चीजें थी, टोल टैक्स एंड एक्सेस टू रोड और प्रीमाइसेस और ब्रिज ऑन एन्युटी, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ एग्जम्पशन। जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें आएगा ये, बट दैट वाज फॉर यूजिंग दैट रोड। यहाँ पे यूज ऑफ रोड नहीं है, यहाँ पे क्या है? अब तुम्हें सिर्फ रोड और एन्युटी याद रह जाए ना तो तुम्हें क्या लगेगा कि हाँ ये तो रोड और एन्युटी आ गया, क्लिक हो गया, फोटोजेनिक, बट इट इज कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन इज टैक्सेबल। क्लियर? नेक्स्ट, clarification regarding applicability of GST on services supplied by state government to their undertaking, that is a PSU, by way of guaranteeing a loan taken by those PSU exempt। ये तो स्पेसिफिकली एग्जम्पशन लिस्ट में एक जगह पे आता है, फिर भी उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। क्या है सर, समझ रहे हो? अगर कोई PSU को लोन लेना है, उनके पास सफिशिएंट कोलेटरल एसेट्स नहीं है जिसको कि वो मॉर्गेज कर पाए, so this PSU, which is actually a government undertaking, they will go to the respective government department from where they belong, और गवर्नमेंट उनके बिहाफ में बैंक को गारंटी देता है क्या कि अगर इसने डिफॉल्ट किया
तो हम तुम्हारा लोन पे करेंगे। और गवर्नमेंट फिर ये पीएसयू से पैसे लेता है फॉर प्रोवाइडिंग गारंटी। गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए ना पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, तो पीएसयू से फिर गवर्नमेंट पैसे लेता है फॉर गिविंग दिस गारंटी। तो क्वेश्चन अराइजेस दैट वेदर दिस गारंटी चार्जेस is subject to GST. Answer to that is no, it is not subject to GST. Understood है? समझ में आया ना? Again, clarification regarding coaching services supplied by the coaching institute or even an NGO under central sector scheme of the scholarship for student with disabilities like you. आंसर टू दिस इज एग्जम्प्टेड, बट ध्यान से समझो ये क्या हो रहा है। ये जो कोचिंग सर्विसेज है ना, वहां पे थोड़ा लिखना, कोचिंग सर्विसेज सप्लाइड वेयर एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय गवर्नमेंट। तो वो तो वैसे भी जब एक्सपेंडिचर 100% गवर्नमेंट बॉर्न किया है तो वो वैसे भी एग्जम्प्ट है। क्यों? बिकॉज दिस इज अंडर अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। समझ रहे हो? तो अंडर अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट अगर तुम कहीं पे कोचिंग चालू करते हो तो तुम्हें पैसे वो डिसेबल बच्चे नहीं देंगे, गवर्नमेंट तुम्हें पैसे दे रही है ना, तब तुम ये कर रहे हो। हेलो, तो रिसिपेंट कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट है, बच्चे नहीं है। रिसिपेंट कौन है? द वन हु पेज, गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर इज borne by the government and therefore it is exempt. Clear? Clarification regarding GST on overloading charges at toll plaza. मतलब अगर टोल प्लाजा पे तुम ट्रक लेके निकले, ट्रक का कैपेसिटी अगर कुछ मेट्रिक टन है, उससे ज्यादा अगर उस पर सामान हुआ तो टोल टैक्स ज्यादा चार्ज करेगा वो। अपने कभी ट्रक लेके निकले नहीं तो पता नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है। उसके अलावा भी जैसे फास्टैग कार पे अगर लगा नहीं है, तुम जा रहे हो तो डबल लेते हैं। तो हमको तो पढ़ाई में ये आया कि टोल टैक्स इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। नो, टोल टैक्स इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। लेकिन ये डबल टोल टैक्स जो लगा है, तो एक्स्ट्रा जो 100% दूसरा लगा है, क्या ये टोल टैक्स है? आंसर टू दैट इज यस। तो अगर फास्टैग नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें डबल टोल टैक्स पे करना पड़ा ना, तो स्टिल इट इज अ टोल टैक्स। या फिर आप कैपेसिटी से ज्यादा सामान लेके निकले तो उसकी वजह से तुम्हें ज्यादा टोल टैक्स पे करना पड़ा। वैसे लिखा होता है कार का इतना, ट्रक का इतना, अलग अलग, लाइट व्हीकल, हेवी व्हीकल, वेरी हेवी व्हीकल, उस हिसाब से टोल चार्जेस होते हैं। लेकिन उसकी भी डेफिनेशन है। तो जैसे टोल गेट पे ट्रक आता है ना, उसका वेट होता है और नंबर से स्कैन करके आरटीओ से कनेक्ट होता है, जिससे उसका कैपेसिटी आ जाएगा ये 6 मेट्रिक टन। माल भरे अंदर 8 मेट्रिक टन, तो रोड उतना ज्यादा यूज होगा, मतलब रोड फटने के, खराब होने के, मेंटेनेंस के चांसेस ज्यादा। तो तुम सस्ते में वो वाले रेट से नहीं निकल सकते, वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा आपसे, बट स्टिल इट इज अ टोल टैक्स एंड देयरफॉर इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। क्लियर है? सो ओवरलोडिंग चार्जेस एट टोल प्लाजा, एब्सेंस ऑफ फास्टैग के अंदर से जो तुम्हें ज्यादा भी टोल टैक्स पे करना पड़े, स्टिल इट इज एग्जम्प्ट बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर द सेम एंट्री जहां पे टोल टैक्स इज कवर्ड, बिकॉज स्टिल इट इज अ टोल टैक्स ओनली। अंडरस्टूड है? आगे, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एप्लीकेशन फीस चार्ज फॉर entrance or fees charge for issuance of eligibility certificate for admission or for issuance of migration certificate by educational institute is exempt. So for example, अगर तुम अब यहाँ पे एसवाई में, एमएसयू में हो और टीवाई से तुम्हें कॉलेज चेंज करनी है, तो यहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुम्हें लेना पड़ेगा और जहाँ पे तुम एडमिशन ले रहे हो वो वहाँ पे वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा। क्यों? बिकॉज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इज दैट वन स्टूडेंट कैन नॉट टेक फॉर द सेम डिग्री एट 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी। एडमिशन एक साथ 2 जगह पे नहीं ले सकते। तो एक का माइग्रेशन मतलब काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन के यहाँ से बंदा रिलीव हो गया, अब वहाँ पे उसको एडमिशन दे सकते हो। अब उसके लिए अगर वो कोई चार्जेस लेते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो क्वेश्चन अराइजेस दैट वेदर इट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। नो, all services provided by educational institute are exempt. Services provided by educational institute are exempt. Services provided to educational institute are exempt only specified. by में तो कोई नहीं है, सारी सर्विस provided by educational institutes are exempt. Am I clear? So from that aspect it is exempt. प्लीज अंडरस्टैंड, 2 चीजें आई यहाँ पे, माइग्रेशन भी आया और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर फीस चार्ज की है तो वो भी आ गया। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अभी वो स्टूडेंट नहीं है लेकिन प्रोबेबल स्टूडेंट है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फीस रहेगा दैट इज, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फीस
जो स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने चार्ज किया है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ exempt. क्लियर है? Clarification regarding applicability of GST on transportation of minerals from mining pit head to the railway siding, beneficial plant, etc. by vehicle deployed with a driver for specific duration of time. See, it's the renting of vehicle. इतना important नहीं है ये, बहुत industry specific जब होता है ना तो उतना important नहीं है. You can skip it, but you can keep it as a taxable. Mining का transportation आया, मैंने जितने भी दिए वो रख तो दिए हैं, but it is taxable, not eligible for exemption. ठीक है? So it is taxable. Clarification regarding GST on payment of honorary amount to the guest anchor. Honorary पे करो या चार्जेस लेके एंकर ने पैसे लिए, हमें कोई लेना देना नहीं भाई. एंकर गेस्ट एंकर है तो सारे एंकर तो गेस्ट ही होते हैं, परमानेंट वहां रहते नहीं है. अगर कोई एंकर है किसी शो का तो परमानेंट नहीं है ना, वो शो के लिए स्पेसिफिकली इनवाइट किया है तभी तो एज अ गेस्ट आया है एज अ एंकर. तो आप किसी भी नाम पे पैसा दो, इट इज ट्रीटेड एज. तो गेस्ट एंकर को ऑनररी अमाउंट भी आप पे कर रहे हो, देन ऑल्सो इट इज टैक्सेबल. Clarification relating to applicability of GST on the medical charges paid by way of IVF. IVF is still treated as part of healthcare services. So whatever IVF charges that you have paid to the doctor, still it will be part of your healthcare services, and therefore it is still considered as an exempted. So IVF and ART ये short form याद रखना. We are not science guy, तो लेकिन ये याद रखना. ठीक है? Then clarification regarding applicability of GST on the sale of land after leveling, laying down of the drainage lines, not subject to GST as per schedule 3. लेकिन ये ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है. अच्छा, मेरा खुद का अगर लैंड है, खुद का लैंड, वो खुद का लैंड में खुद डेवलप करके फिर लैंड बेच रहा हूँ. मैंने किसी और को राइट नहीं दिया डेवलपमेंट का. मैंने खुद उसको लेवलिंग किया, ड्रेनेज की लाइनमेंट डाली, इलेक्ट्रिक पोल लगाए, प्लॉटिंग किया, और फिर वो वाली लैंड मैंने बेची, मैंने खुद अपने हिसाब से. Still it is considered as a sale of land. Why? Because I have done it on my own. तो पहले में जो कवर होता है ना, that is land owner himself is doing this and then he himself is selling. लेकिन अगर उसने लैंड ओनर ने किसी और को अपॉइंट किया who is a developer and she is developing on my land and then she find out the customer and sell, तो मैंने उसको डेवलपमेंट राइट दिया which is subject to GST. फिर वहां पे वो प्लॉट बनाए, फ्लैट बनाए, मैंने तो डेवलपमेंट राइट दे दिया ना. सो नॉट डन बाय मी. इफ डन बाय मी then not subject to GST because still it is my land. I can do whatever I want to do over there and then I can sell the piece of that land easily, not an issue. लेकिन अगर मैंने वो डेवलपमेंट राइट किसी और को ट्रांसफर किए, आप डेवलपमेंट करो, मैं नहीं करूंगा, तुम लेवलिंग करो, तुम ड्रेनेज लगाओ, तुम प्लॉटिंग करो, और फिर प्लॉट तुम कस्टमर को ढूंढ के बेचो, मेरे को मेरे लैंड का पैसा में से 70% मिल जाए, 30% तेरा. So without land, she is now earning based on this development. That is subject to GST. Understood? Clear? हाँ, तो ये दोनों चीज कवर होती है. यहाँ पे पहले में आया नॉट सब्जेक्ट टू GST, तो नीचे आएगा attract GST. Why? Because in that case, development is being done by the developer. Clarification regarding hiring of vehicle by a firm for transportation of their employee to and from work. एम्प्लॉय पैसेंजर नहीं है सबसे पहले तो. ये कौन से बेस पे पूछ रहे पता है? नॉन AC स्टेज कैरेजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाज एग्जम्प्टेड. नॉन AC स्टेज कैरेजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज एग्जम्प्टेड. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में आया था ना ये, जहां पे अमेंडमेंट भी है 9(5) वाला कि अगर 9(5) के थ्रू बुकिंग हुआ है तो टैक्सेबल हो जाएगा. ओरिजिनली इट इज एग्जम्प्टेड. तो वो एग्जम्पशन एंट्री से उन्होंने बेनिफिट किसी ने मांगा होगा कि भाई अगर मैंने रेंट पे लिया है बस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माय एम्प्लॉय टू एंड फ्रॉम वर्क टू होम, सो वेदर आई विल गेट द बेनिफिट.
Answer to this is no, because it is first of all not transportation of passenger. Employees are first of all not passengers. Second thing, this is not transportation of passenger service. This is actually taking vehicle on rent. तुम्हें जहां पे उसको घुमाना है घुमाओ, ड्राइवर के साथ मिलता है वो। तो रूट कौन आइडेंटिफाई करता है? कंपनी। ये ट्रैवल्स वाले रूट आइडेंटिफाई नहीं करते ना, कंपनी खुद करेगी, कंपनी की बस है तो। सो इट इज नॉट अ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इट इज अ सर्विस ऑफ renting of motor vehicle. Benefit is available to transportation of passenger, so therefore this is subject to GST. आ रही बात समझ में? कौन से रीजनिंग से? इट इज रेंटिंग सर्विस, नॉट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। कहीं पे भी ये क्लैरिफिकेशन में उन्होंने ये आर्ग्यू नहीं किया है कि इट इज नॉट एम्प्लॉय और नॉट पैसेंजर, तो वो आर्ग्यू मत करना, ये तो हमारे अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ कि इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस, इट इज रेंटिंग ऑफ व्हीकल। अंडरस्टूड है? So therefore it is taxable since it is renting of vehicle service. Clarification regarding applicability of GST on tickets of private ferry used for passenger transportation. यहाँ पे क्या डाउट आया कि तुमने बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एग्जम्प्ट, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वो होता है जो पब्लिक अथॉरिटी ने प्रोवाइड किया, मतलब जीएसआरटीसी का बस। दिस इज अ प्राइवेट फेरी, तो क्या ये एग्जाम्पशन मिलेगा? आंसर टू दैट इज यस। प्रीडोमिनेंट यूज क्या हो रहा है हमें वो देखना है, वेदर इट इज बीइंग यूज्ड एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर्पस, एवरीवन इज अलाउड एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यस, देन यू आर फुलफिलिंग द पर्पस। एग्जाम्पशन में कहीं ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी रन बाय द गवर्नमेंट, इट शुड बी यूज्ड एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट शुड बी ओपन टू द पब्लिक एज अ जर्नल। अंडरस्टूड है? श्योर। तो ये सारे क्लैरिफिकेशन है जहां से क्वेश्चन बने जा सकते हैं। तो 5 मिनट में दे रहा हूँ, एक बार देख लो अभी, क्योंकि उसके बाद आप कब देखोगे एग्जाम डे, उसे पहले देख के कंफ्यूज भी मत होना। 40 मार्क ही लाने हैं तो यही पढ़ के जाओ, ऐसा भी नहीं करना। पीपल कैन टेक इन डिफरेंट वे, नो, देन आई टू क्लैरिफाई कि हमें नहीं चाहिए, हम मोह माया से परे हैं। 40 लाने हैं। 5 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ लो। पानी पानी पी लो, तब तक पढ़ लो।
फाइन। तो प्रोविजंस जो अच्छा खासा जो हमारे मटेरियल में नहीं था, दैट पार्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो अब जो चीजें हैं वो ऐसी नहीं है कि हमने को पता ही नहीं है। प्रोविजन आईटीसी में क्या अंदर उतरा कुछ? अंदर तो नहीं आ सकते, अंदर हो सकता है 100। Start the amendments in ITC provision. Let's try to understand. Again, yesterday also we had seen certain amendments. This is effective from October 22. कल हमने क्या देखा था कि 16(1)(16)(2)(AA). हेलो, क्या था वो? That your supplier must have filed GSTR1 or either by using IFA facility, and it must be shown to you in your 2B. Then only ITC can be availed. AA में था ये। BAB था, एक ऐड हुआ क्या कि भले चाहे कुछ भी हो, सारी चीजें हैं आपके पास, लेकिन अगर हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है अंडर सेक्शन 38, इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 38। अगर वो रिस्ट्रिक्ट की हुई है सर्विस या गुड्स या तो ट्रांजैक्शन, देन इट इज not available as a ITC. So even though you have invoice, even though you have received the goods, even though the supplier has filed GSTR1, even though tax has been paid to the government, even though you have filed your return, even though it reflect in your 2B, even though you comply all the condition, but if that ITC is being restricted under section 38, जहाँ पे list था, which is yet not notified what exactly has been covered in that, but if it is notified under section 38 as a restricted ITC, then you won't be able to avail those ITC. Clear है? So this is a new something which is added from October 2022. फर्दर कल भी हमने ये पढ़ा हुआ था, अक्टूबर 22 सिर्फ इफेक्टिव डेट ही हमने नहीं देखी थी, 16(4) का, which is 30th of November, last date of availment of ITC. We already did it, but the effective date is 1st October 22, जहां पे उन्होंने बताया क्या, that 30th November will be the last date for availment of ITC. Understood है? फाइनेंस एक्ट 22 में आया, अक्टूबर 22 को इफेक्टिव हुआ, दैट मीन्स 21-22 को एप्लीकेबल हो गया। एक साल बाद नहीं, एप्लीकेबल हो गया। क्लियर है? जानबूझ के इसीलिए स्टार्टिंग में उन्होंने नोटिफाई नहीं किया कि भाई तुम ले लो, लेनी है तो आईटीसी। देन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी नॉट ब्लॉक्ड इन केस ऑफ लीजिंग अदर देन लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट। देखो 17(5) है ना, चलो 17(5) जहां पे हम रिस्ट्रिक्शन पढ़ते हैं, पहला ही रिस्ट्रिक्शन आता है that you are not allowed to avail an ITC of motor vehicle first. मोटर व्हीकल खरीदा या वेसल खरीदा या एयरक्राफ्ट खरीदा, आईटीसी नहीं मिलता है। अच्छा, खरीदा नहीं, तुमने रेंट पे लिया तो भी नहीं मिलता है। लेकिन वहां पे अब आईटीसी है आपके पास, कंप्लीट आईटीसी का, प्लीज ओपन इट। वहां पे लीजिंग इस तरीके से लिखा हुआ है जहां पे हमें लगेगा कि लीजिंग इज अ सेपरेट सर्विस विच हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। अगर यहाँ पे है आईटीसी तो मैं दिखाऊं, हाँ चलो।
ये बी वाले में आओ। हमने तो सही अंडरस्टूड किया था, हमको तो क्लियर ही था, लेकिन वर्डिंग के हिसाब से मिस इंटरप्रिटेशन ना हो इसलिए क्या लिखा, फूड एंड बेवरेजेस तो वो एक अलग है, आउटडोर कैटरिंग एक अलग एंटिटी है, ब्यूटी ट्रीटमेंट एक अलग एंट्री है, हेल्थ सर्विस अलग एंट्री है, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी अलग एंट्री है। उसके बाद पेज नंबर लेट मी टेल यू 11.8, उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है ना, जिसकी वजह से ये सब बवाल है, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग। तो ऐसा नहीं है कि हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, लीजिंग एंड रेंटिंग ऑफ एवरीथिंग इज ineligible. All these terminologies are being used in context with only motor vehicle. तो ये तीनों एक साथ ही पढ़ने हैं, क्योंकि बीच में कॉमा आता है ना तो लगता है कि भाई लीजिंग हैज बीन डिस्क्वालिफाइड. It is not leasing which is disqualified. It's the leasing, renting or hiring in whatever name you have taken that motor vehicle. But it should be a motor vehicle, vessel, aircraft. अगर कोई और चीज तुमने लीज पे ली है तो वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये तो हमें तो पता ही था, लेकिन वर्डिंग कुछ इस तरीके से थे, इसकी वजह से कंफ्यूजन होता था. आगे और भी आएगा प्रोविजो के रिलेटेड. हाँ, तो वापस आते हैं यहाँ पे. समझ में आया ना अभी कि क्या कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं. Not blocked in case of leasing, but it should be other than of motor vehicle, vessel, aircraft. इन तीनों को छोड़ के जो चीज लीज पे लेनी है, लोग कौन मना कर रहा है, मिस इंटरप्रेट कर दिया था. किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा, बोला नहीं नहीं इसका हमको कोई दिक्कत नहीं, ले लो. Then there is a proviso after section 15 17(5)(b) clause 3. It applies to whole 17(5)(b). वापिस आओ 17(5)(b) पे. ये 17(5)(b) ही है आई थिंक, जहां पे ये प्रोविजो था. प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहले मना किया फिर क्या बोला, provided that input tax credit in respect of such goods or service both shall be available where it is obligatory for employer to provide the same to employee under any law for the time being in force. देखो, employer, employee and obligation of law, तो कंफ्यूजन ये था कि इज इट एप्लीकेबल ओनली टू दिस 3 नंबर, ये 3 नंबर के लिए प्रोविजो है, या पूरी 17(5)(b) के लिए है. तो वहां उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया, क्या तुमको तो यहां से ही पता चल जाना चाहिए, अगर ये 3 नंबर के नीचे होता ना तो मेरा प्रोविजो यहां से स्टार्ट होता, बाहर से स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब ही होता है इट कवर्स द होल एंट्री. आर यू गेटिंग इट. तो ये पूरा मैंने लिखा हुआ, ये वापस 17(5)(b) में ये 3 चीजें कवर होती है जो भी हमने देखी, 1 2 3, एंड देन ये वाला प्रोवाइजो था. तो क्लेरिफिकेशन क्या आया, दैट दिस प्रोवाइजो इज एप्लीकेबल टू एंटायर 17(5)(b). तो 17(5)(b) में ये सारे आते हैं, तो प्रोविजो सबको एप्लीकेबल है, मीनिंग देयर बाय इसमें से कुछ भी अगर इट्स एन ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू एन एम्प्लॉई, देन द आईटीसी ऑफ द सेम इज अवेलेबल. क्लियर है. इसका क्वेश्चन बन सकता है बढ़िया सा. फाइन. अब जीएसटी एक्ट 2 रहा ही नहीं, क्योंकि 1 और 2 भी ही हो गया, 2 आएगा ही नहीं पिक्चर में, सो दैट हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस रूल्स. दैट्स इट, कुछ नया नहीं है इसमें, इट डज नॉट हैव एनी इंप्लीकेशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब जीएसटी एक्ट 2 नहीं रहा है तो इट हैज बीन एलिमिनेटेड. रजिस्ट्रेशन, सबसे पहला पॉइंट रहेगा वही कि जो वाले गुड्स पे कंपोजिशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, वही वाले गुड्स 40 लाख के लिए भी एलिजिबल नहीं है. उसके अलावा ये 3 तो हमने कल देखे ही थे. हाँ, दिस इज समथिंग व्हिच वाज एडेड लेटर ऑन, 13th of July को ऐड किया, ये पहले 30 अप्रैल से पहले ये ऐड हो चुके थे, तो दिस इज न्यू, फर्स्ट एंट्री इज न्यू. इस पे अभी 40 लाख बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल. फ्लाई एश ब्रिक्स, क्लियर है. देन registration liable to be cancelled, understand,
अगेन कुड बी द गुड क्वेश्चन, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड अगर आप कंपोजिट टैक्स पेयर हो और आपने 3 महीने तक ड्यू डेट खत्म हो जाने के बाद, ड्यू डेट क्या होता है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन जीएसटीआर फॉल फाइल करता है वंस इन ईयर, तब तक तो वो सीएमपी से सिर्फ टैक्स का पेमेंट करेगा, वो भी क्वार्टरली, साल में एक ही बार रिटर्न फाइल करता है, हाँ, फाइनेंशियल खत्म हो जाने के बाद। लेकिन वो फाइनेंशियल खत्म हो जाने के बाद 3 महीने आफ्टर ड्यू डेट तक अगर रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो हिज रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। ठीक है, तो इससे भी एमसीक्यू अच्छा खासा बन सकता है। तो इतना ही इसमें नया एंट्री था, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर। where registration has been suspended under rule 21A सब रूल 2A। अच्छा, ये क्या बताता है, ये बताता है रूल कि अगर तुमने कंटिन्यूस रिटर्न फाइल नहीं किए, क्या था सेक्शन 20 में मैंने पढ़ा था ये कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कब कैंसिल कर सकता है। ऑफिसर, आप कैंसिलेशन या तो खुद अप्लाई कर सकते हो या ऑफिसर सुओ मोटो कैन कैंसिल। उसमें कंडीशन थी कि अगर 6 महीने तक आपने कंटिन्यूस रिटर्न फाइल नहीं किए, अगर आप नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हो तो, हाँ, अगर आप क्यूआरएमपी में हो तो क्वार्टर्स 2 या 3 क्वार्टर्स पे, अगर वहां तक तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या बता रहा है कि अगर उस रीजन से, कौन से रीजन से, बिकॉज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, कैंसिल नहीं, क्या हुआ है, सस्पेंड, तो तुम जैसे ही रिटर्न फाइल करोगे रजिस्ट्रेशन विल बी रिवोक्ड, तो अलग से कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो जैसे ही तुम जो पीरियड के रिटर्न फाइल नहीं हुए हैं वो पीरियड के रिटर्न फाइल कर दोगे, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा रिवोक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 6 महीने के बाकी है तो 1 महीने का फाइल कर दो, क्योंकि लॉ ने तो बोला है 6 महीने, फिर ऐसा नहीं, 6 महीने के रिटर्न फाइल करो, टैक्स पे करो, तो रजिस्ट्रेशन तुम्हारा रिवोक हो जाएगा, अलग से कुछ एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कॉन्टेक्स्ट में है, अंडरस्टूड है। आगे, registration liable to be cancelled if monthly return filer fails to file a return continuously for 6 months, QRMP वाला 2 quarters, क्योंकि 6 महीने करने ना, क्वार्टर क्वार्टर। So there is also something that we are knowing already, we understood as a part of section 29 and its rule। वहां पे हमने clearly transaction देखे थे जहां पे he has a right to cancel, तो basically it is a right of officer to cancel, understood है। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट, डेबिट नोट एंड ई-वे बिल रिलेटेड, सबसे पहले आएगा हमारा क्या, ई इनवॉइसिंग 10 करोड़, एमसीक्यू में आएगा ये, ठीक है। उसके बाद दिस मे नॉट बी द पार्ट ऑफ योर एग्जाम क्वेश्चन, बट व्हाट इट सेज के अगर तुम्हें ई इनवॉइसिंग कंपलसरी किया गया, तुम्हारे पे ई इनवॉइसिंग हमने कंपलसरी किया, but you are falling in a category where you are exempted from e-invoicing, SEZ, banking, insurance, टिकट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, वहां पे तुम्हें इनवॉइसिंग आप नहीं करोगे तो चलेगा। तो अगर तुम इनवॉइसिंग नहीं करते हो, इवन दो यू क्वालिफाई अ क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर, तो तुम्हारे इनवॉइस पे तुम्हें ये छापना पड़ेगा, ये पैराग्राफ। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हो नहीं सकता है, जिस कंप्लायंस एस्पेक्ट से मैंने रखा था कि दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच वाज इंट्रोड्यूस, कि अगर तुम्हें एप्लीकेबल नहीं है ई इनवॉइस बिकॉज यू आर एग्जम्प्टेड, नॉट बिकॉज टर्नओवर क्राइटेरिया, बिकॉज यू आर एग्जम्प्टेड स्पेसिफिकली, then you need to put this paragraph over there, understood है। आगे, टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट, वो भी क्या था, तो ये भी कल तो देखा था हमने, सिर्फ इफेक्टिव डेट नहीं देखी थी, तो इफेक्टिव डेट क्या है, अक्टूबर 22, जो डेट आईटीसी की 16/4 की वही डेट इसके लिए। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां उनको टैक्स मिलता है, क्रेडिट नोट पे हम टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं, और सप्लायर ही इश्यू कर सकता है डेबिट या क्रेडिट नोट, क्योंकि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई सप्लायर ने किया था, तो अगर उसकी वैल्यू अब चेंज करनी है तो रिसिपेंट नहीं कर सकता, जिसने ओरिजिनल ट्रांजैक्शन
इनिशिएट किया था उसको मॉडिफाई भी सिर्फ इनिशिएटर ही कर सकता है। तो सप्लायर ही क्रेडिट डेबिट नोट रेज कर सकता है, रिसिपिएंट नहीं। तो क्रेडिट नोट का कट ऑफ डेट 30 नवंबर। In case of issuance of e-invoice, no requirement to carry physical copy of invoice. This again could be true and false. ऐसा काम की नहीं होते लेकिन कंफ्यूज करते हैं ये। Therefore I have kept it and it's amended तो high probable भले ही मेरी डेट के आगे का था ये, तो ट्रू और फॉल्स में यह डाल सकता है। हाँ, पेमेंट ऑफ टैक्स, दिस इज ऑल्सो वी अंडरस्टूड यस्टरडे। इफेक्टिव डेट नहीं था सर हमारे पास। क्या कैश लेजर का बैलेंस we can transfer to any person within that same PAN, maybe in the form of C, maybe in the form of I. मेजर हिट माइनर हिट जो चाहो कर सकते हो, तुम्हारे पैसे, लेकिन तुम्हारे GSTN और तुम्हारे पैन के बाहर नहीं। हाँ, तो तुम्हारे डिस्टिंक्ट एंटिटी को तुम दो, दूसरे को नहीं जाएगा। अंडरस्टूड है? Money now you can deposit in your cash ledger by using UPI and IMPS. Again, July 22. So this also could be true and false or part of your MCQ. हाँ, जीपे कर सकते हो तो कैश लेजर में पैसे डिपॉजिट करने के लिए। पहले था NEFT, RTGS, वायर ट्रांसफर, UPI नहीं था पहले। Now you can do it. या फिजिकल कैश जाके डिपॉजिट करो, तो now you can do UPI and IMPS also for depositing money in your cash ledger. Clear है? Levy of interest on ITC wrong level, this also we did yesterday. कल हमारे पास डेट नहीं था, वैसे लिखा हुआ था रिट्रोस्पेक्टिव आएगा, बट इट्स बीन नाउ एप्लीकेबल रिट्रोस्पेक्टिवली। क्या है ये? 53 ITC wrongly availed and utilized, वो वाला शब्द था ना कल, वही वाला है। Input tax credit wrongly availed and utilized, then only interest will be levied, which can go up to 24%. So just wrong availment is not subject to interest, it is subject to interest only if it is utilized also. Plus in context with it 51, ये तो क्या था 53, 51 is basically talking about interest on delayed payment of tax, interest on delayed payment of tax। वहां पे भी हमने ये डिस्कस किया था क्लासरूम में कि अगर मैंने 3B लेट फाइल किया, चलो 6 महीने मैंने 3B लेट फाइल किया, मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी 5 लाख रुपया, मेरा ITC है 3 लाख रुपया, तो क्या मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5 लाख पे या तो नेट 2 लाख पे? आंसर टू दैट हैज बीन गिवन in this new rule 88B that I would be required to pay interest only on the cash component. That means only on 2 lakh, not on full 5 lakh. तो 5 लाख पे नहीं इंटरेस्ट लगेगा, 5 लाख माइनस ITC whatever I am availing in that 3B, net balance is 2 lakh, 2 lakh पे इंटरेस्ट लगेगा, नहीं के 5 लाख पे। अंडरस्टूड है? क्योंकि ITC ऑलरेडी तुम्हारे पास है पैसे, वो क्या नहीं है तो 2 लाख नहीं है। Clarification regarding utilization of amount available in electronic credit ledger and cash ledger for the payment of tax and other liabilities. Let's read it. चलो पढ़ू ना? Let's see. Clarification. Let's understand. As per term section 49 subsection 4, क्योंकि ये उसी का कंटेंट है जो शायद मैं बोल रहा था कि सेल्फ स्टडी कर लेना, उसी के कंटेंट में से अमेंडमेंट प्रोविजन है, इसलिए मैं लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि तुमने सेल्फ स्टडी में नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए मैंने पूछा पढ़ू ना? तुमने हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं कहा, उसका मतलब कल से आज तक भी वो पढ़ के नहीं आए। सो लेट्स सी whether amount available in credit ledger can be used for making a payment of any tax under GST law. क्रेडिट लेजर कोई भी टैक्स पे करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये अगेन क्वेश्चन कुड बी देयर, थियरी क्वेश्चन। सी अमेंडमेंट प्रोविजन का मतलब क्या? क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है तो ये डिटो क्वेश्चन उठा के रख देंगे,
3 मार्क. So clarification that in the terms of section 4, the amount available in a credit ledger may be used for making any payment towards output tax of CGST Act or IGST Act, subject to the provision relating to the order of utilization of ITC as laid down in 49B, Rule 88A. Rule 86(2) provides for debiting electronic credit ledger to the extent of discharge of any liability in accordance with section 49 and its group. Further, output tax in relation to taxable person, that is a person who is registered under 22 or under 24, as defined under section 2, subsection 82, as tax chargeable on taxable supply of goods or a services or both, but exclude tax payable on reverse charge mechanism. तो ये ऑलरेडी तुम्हें पता है कि आईटीसी जो होती है, that ITC can be utilized only against your payment of your output tax. Whatever tax that we are paying under RCM is not output tax, it is a tax on my inward supply. तो ITC cannot be used for payment of RCM. ITC can only be used for payment of my output tax. I hope everyone has a clarity on this. Understood है? Accordingly, it is clarified that अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. Issue number 2. Whether the amount available in electronic credit ledger can be used for making payment of any liability other than tax, क्या आंसर रहेगा? ITC cannot be used for payment of your interest, late fee, penalty. उसके लिए ITC use हो सकती है. Clear? Issue number 3. Whether amount available in electronic cash ledger can be used for making a payment of any liability. तो cash ledger में रखा क्यों है पैसा? शिरू, थर्ड इश्यू पे है. तुम्हारा अलग इश्यू चल रहा है मेरे को लग रहा है. अंडरस्टूड? कैश लेजर कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस. हमें कोई लेना देना नहीं, तुम जुआ खेलो उससे, हमें कोई मतलब नहीं होता. तो कैश लेजर कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ इवन टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, व्हाटएवर पर्पस यू वांट टू यूज, यू कैन यूज इट. अंडरस्टूड? नाउ आई थिंक इट्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज रिटर्न. अमेंडमेंट में थक जाते हो अगर तुम, तो जीएसटी का सिलेबस तो पता नहीं कब तुम्हारा खत्म होगा. Let's see. A registered person is debarred, मतलब restricted from furnishing the details of outward supply in GSTR1 और IFF if, अगर भाई साहब ने रिटर्न फाइल नहीं किया प्रीसीडिंग मंथ का, तो अगर जून महीने का रिटर्न तुमने फाइल नहीं किया तो तुम जुलाई का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो. हाँ, जून को स्किप करके आप जुलाई का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो. दैट इज नोन फैक्ट टू अस. अगेन GSTR 2B का नाम दिया गया है ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट. दैट्स इट. कुछ उसका कंटेंट नहीं है, लेकिन उसको बताया जाता है ऑटो जनरेटेड. मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इट इज स्टेटेड ऑटो जनरेटेड. नो कंप्लायंस रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द रिसिपिएंट. आर यू गेटिंग इट और नॉट? देन बिकॉज GSTR 2 और 3 निकल गया, तो उसके लिए जो पहले ये रूल थे वो सारे रूल को भी उन्होंने ओमिट कर दिया. कुछ डेडिकेटेड एग्जाम ओरिएंटेड इम्प्लीकेशन नहीं है, बट स्टार्टिंग विथ 69 अप टू 74 उसका ध्यान है, तुम दोनों को देने की जरूरत है. अंडरस्टूड? बिकॉज 2 and 3 इज गॉन, नो मोर एप्लीकेबल. तो उसके एसोसिएट जितने भी रूल थे दैट आल्सो गॉट एलिमिनेटेड 77 तक टू बी प्रिसाइज. ठीक है, ये अब गया ओमिशन ऑफ दिस फॉर्म, तो अभी एप्लीकेबल नहीं है. कब से? ऑफिशियली पहले दिन से यूज नहीं हो रहा है वैसे तो, लेकिन ऑफिशियली 1 अक्टूबर 22 से. तो दिस डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंट थिंग, बट कॉर्नरिंग में पूछ सकते हैं कि इट बिकम इनऑपरेटिव फ्रॉम विच डेट. तो अक्टूबर 22.
फाइन। कल जो हमने अमेंडमेंट पढ़ा ना, उसमें सेक्शन 37 से लेके बहुत सारे डिटेल अमेंडमेंट है, वो टेबल फॉर्म में। अब उसमें से एग्जैक्टली जो चेंजेस किए हैं, anyways, let's see. Yesterday, what we were trying to understood was the amendments which has been brought under section, starting with section 37. तो कुछ कुछ अमेंडमेंट अंदर सेक्शन 37 में, विच बेसिकली टॉकिंग अबाउट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, तो पूरा मैंने नहीं छापा है. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस which has been brought under those sections, that is what we are trying to discuss here. Let's see. जितने चेंज है उतना ही लिखा है. सेक्शन 37 is to be amended so far as it now provide for prescribing the condition restriction for furnishing the details of outward supply and for communication of the details of such outward supply to the concerned recipient. पहले ये सब चीजें इसलिए नहीं थी बिकॉज पहले मेरा मैकेनिज्म था 1, 2, 3 का. अब मैकेनिज्म चेंज हो गया, 1, 2B का हो गया. पहले ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि तुमने 2 महीने रिटर्न फाइल नहीं किए तो हम तुम्हें फाइल नहीं करने देंगे. वो रिस्ट्रिक्शन भी आ गया कि जब तक तुमने पुराना रिटर्न फाइल नहीं किया तब तक तुम्हें नया नहीं फाइल करने देंगे. सो टू दैट एक्सटेंट 37 हैज बीन चेंज. नाउ इट इज डन अवे विथ टू वे कम्युनिकेशन. हाँ, टू वे कम्युनिकेशन मतलब 1 के सामने 2 फाइल करना था तो वो फाइल नहीं करना है, तो टू वे कम्युनिकेशन इज गॉन. इट इज ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट टू बी, फाइल किया, सामने वाले को पहुंच गया. देन provide for an extended time of 30th November
following the financial year for rectification of your error in respect of details of outward supply furnace. मतलब तुम्हें अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो भी उसका डेट कौन सा है 30 नवंबर, उसके बाद तुम रेक्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते हो. अगेन इट प्रोवाइड फॉर पीरियड वाइज सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सबसेक्शन 1. पीरियड वाइज आपको फाइलिंग डिटेल भी अब वो प्रोवाइड करेगा तुमने क्या किया है. हाँ, तो पहले वाला अगर नहीं फाइल किया तो नहीं फाइल करने देंगे. सो दिस टू दिस एक्सटेंट एक्ट एज अमेंडेड, हमें प्रोविजन एग्जिट क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए क्या क्या चेंजेस आए उतना सफिशिएंट है. तो ये बन सकता है आपका अगेन एमसीक्यू. रेक्टिफिकेशन का भी प्रिस्क्राइब टाइम है तुम्हारा 30 नवंबर. सेक्शन 38 तो पूरा ही नया डाला हुआ है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आईटीसी में आया था ना 16(2)(ba) that even though you comply with all the conditions for availment of ITC, but if it is restricted in the 38, then we will not allow you the ITC. So that already we studied section 38. So again, I am not going into the line item wise information that what exactly has been mentioned over there. 38 already dedicated. That has been substituted. ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ changes किए हैं, जबकि 37 के अंदर कुछ changes किए थे तो वो changes मैंने लिखे हैं. 38 पूरा substitute कर दिया है, तो पूरा वापस लिखा हुआ है, बट ऑलरेडी हमने जो पढ़ा है ना वही सब्स्टिट्यूटेड वर्जन ही है. That already we understood. So again, I am not repeating it. 39 amended. To what extent? It provide an option to the person furnishing a return under proviso to subsection 1 to pay either self-assessment tax or amount as may be prescribed. That means QRMP. पहले ऑप्शन नहीं थे ना ऐसा, तो एक्ट सपोर्ट करना चाहिए QRMP को कि तुम लमसम भर दो 30% of previous quarter. So law has to allow either self-assessed tax or amount prescribed. Also provide for again 30th November for again rectification of whatever mistake that you have done in your 3B. So again rectification के लिए ये ध्यान रखना. Again it provides for furnishing the details of outward supply for the tax period under subsection 1 of 37 as a condition for furnishing the return under 39. मतलब क्या 30 अगर तुमने 1 नहीं फाइल किया तो 3 भी फाइल नहीं कर सकते. So that has been also incorporated here. 41 is substituted altogether. This is something relating to filing of return and payment. So please understand. ये पूरा substituted act है. This is full new. जहां जहां अंदर चेंजेस है ना, वो चेंजेस क्या है वो मैंने मेंशन किए. जहां पूरा सेक्शन ही चेंज हो गया तो अलग ही लिखा है. Every registered person shall, subject to condition and the restriction as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax credit as a self-assessed in his return, and such amount shall be credited to his credit ledger. चेंज क्या किया इसमें? अच्छा, तुम्हें चेंज इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि तुमने पुराना नहीं पढ़ा. ये पुराना पढ़ने में क्या था प्रोविजन? तुम 1 फाइल करो, सामने वाला रिसिपिएंट 2 फाइल करेगा, सामने सामने मैच करो, तब जाके आईटीसी फाइनल करो और 3 में लो. That is now done away. You can avail ITC on रिस्ट्रिक्शन है 2B वाला, लेकिन अपने हिसाब से ले लो, मैच करो बुक्स के साथ. इनवॉइस आ गया है, 2B में भी है, गुड्स भी आ गया, यू आर कंप्लाइंग ऑल 16 कंडीशन, ले लो इसी मंथ में. गुड्स नहीं है भले 2B में दिख रहे हैं, आईटीसी नहीं ले पाएंगे. 2B में दिख रहे हैं लेकिन आपके पास फिजिकल गुड्स नहीं है, भले इनवॉइस आ गया, फिजिकल गुड्स नहीं है, which is again a requirement of 16(2), you can't avail ITC. तो सेल्फ एसेट फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं कि जो 2B में दिख रहा है सारा ले लो, नॉट इन दैट वे. A credit of input tax credit availed by a registered person under subsection 1 in respect of such supplies or goods or services or both tax payable thereon has not been paid by a supplier shall be. अब ये क्लियरली बता रहा है कि अगर तुम्हारे सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया और तुम क्रेडिट लेके बैठे हो तो हम रिकवर करेंगे तुम्हारे से विद इंटरेस्ट. फिर मत बोलना कि भाई सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स पे करने की, उससे मांगो मैं नहीं दूंगा. तुमसे वसूलेंगे, उससे तो वसूलेंगे ही, तुमसे भी वसूलेंगे. Provided that where the said supplier makes the payment of tax payable in respect of aforesaid supply, the said registered person may then re-avail whenever
supplier is paying them. ठीक है, ये 3 has been omitted, it's not important. Last 47 to be amended so far as to provide levy of late fee for delay of filing of return under section 52. 51 52 क्या था? तो लेट रिटर्न फाइलिंग का जो फीस था, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द पर्सन नोटिफाइड अंडर 52. तो हमने लेट फी वाला जो टेबल बनाया था ना, उसमें ये है ऑलरेडी, बट दिस इज न्यू 52 के लिए. 51 इज, देख लो ना प्रिसाइज, टीडीएस है कि टीसीएस है, जनरली लिखते हैं. श्योर ना? द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस. अगर टीडीएस डिडक्ट करके भी उसने रिटर्न फाइल करना था, अगर फाइल नहीं किया है तो अगेन लेट फी विल बी लेविड. Clear? Sure. Understood? This is very, again I am telling you, important. You need to do this the day before your examination without fail. I'll also share this in a short form. Keep it with you because in case कोई एक चैप्टर का पैम्पलेट नहीं मिल रहा है तो मेरे को बता देना. I'll send a soft copy. ऑप्शन में भगवान ने ये भी इच्छा से ऐसा सब कुछ मत करना.